Greetings, students, and welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Okay, and today we are going to start a new chapter, and the chapter name is Albert Einstein at School. And who's the author, children? The author is Patrick Pringle. Who's the author, children? Patrick Pringle. Now we learn through this extract about the troubles. ठीक है, Albert and Einstein was facing when he was in school. अब हम क्या देखते हैं इस चैप्टर में कि what are the troubles that Albert Einstein was facing. ठीक है, we see that he did not like the school that much. तो हम इसमें देखते हैं कि he did not like that school a lot. ठीक है, पहले हम ये स्टोरी किसने लिखी है? पैट्रिक प्रिंगल ने. तो हम क्या करेंगे? उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट? Now see, Patrick Pringle was born in 1935, right? He was born in 1935 in Rochester, New York. He is a wildlife photographer, freelancer writer, and wildlife biologist. He has written a lot about wildlife and he has also written fiction books. He loves nature and he is a wildlife enthusiastic. Patrick Pringle's first book was Dinosaurs and Their World. Okay, many of Patrick's books have become international bestseller. Patrick Pringle has received a lot of awards for his work. He attended Cornell University and the University of Massachusetts. Okay, Massachusetts. Okay, now children, let us first see the story. Okay, I'll give you a little bit of summary of it so that you can get an idea and you can easily understand the chapter. Now, Albert Einstein at school. पहले हम उसकी थोड़ी सी summary देख लेते हैं children, ताकि it is easily, you can easily read the chapter. Albert was in his class. The history teacher, Mr. Brown, asked him, when did Persia defeated the French at Waterloo? ठीक है, तो उसकी जो हिस्ट्री टीचर है वो कोई क्वेश्चन पूछती है कि पर्शियंस ने कब डिफीट किया था फ्रेंच को एट वाटरलू. Albert told that he did not know or he must have forgotten. This irritated the teacher. He asked Albert why. Albert replied that he did not see any point in learning dates. One could read about them through books. तो एल्बर्ट इसमें बहुत ज़्यादा वो टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एल्बर्ट बोलता है कि ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट, टू अ हिस्ट्री टीचर, और ये तो हम बुक्स में भी मिल जाएगा, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. द टीचर टॉट दैट एल्बर्ट डिड नॉट बिलीव इन एजुकेशन. ठीक है, तो टीचर ने क्या सोचा कि एल्बर्ट को एजुकेशन ही नहीं अच्छी लगी. ही टॉक्ड इन sarcastic manner. Albert told that education should be about ideas and not about facts. The teacher said that Albert was a disgrace to the school. अब एल्बर्ट बोलता है उसको, एल्बर्ट के टीचर को लगता है कि एजुकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और इसने जो भी जवाब दिया है ये बहुत sarcastically दिया है. ठीक है, तो अब क्या होता है, वो बोलता है कि फिर एल्बर्ट बोलता है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए ना वो किस तरह की होनी चाहिए, वो अबाउट द आइडियाज़ होनी चाहिए, ना कि फैक्ट्स के बारे में. और फिर क्या होता है चिल्ड्रन, फिर जो उसका टीचर होता है वो क्या कहता है कि ये जो एल्बर्ट है ना, ही इज़ अ डिसग्रेस टू द स्कूल. Albert was sad to leave the school, though he did not like the school. He would have to come to it again. He lived in a small room. It was situated in one of the poorest quarters of Munich. The landlady used to beat her children regularly. Her husband came drunk every Saturday and beat her. Albert didn't like the children's crying every time. So Albert told these things to his friend Yuri. He hated the atmosphere of the slum violence. So Albert उस टाइम गरीब थे, तो वो एक poorest quarters में रहते थे. ठीक है, now what happened that उधर जो उसकी लैंडलेडी थी, ठीक है, वो क्या करती थी, बच्चों को मारती थी. हस्बैंड ड्रंकर्ड थे, राइट. नेक्स्ट दिन हिज कजिन केम टू Munich and she told Albert that if he had tried, he could have passed the examination.
There were more stupid boys than him. Moreover, passing the examination was not difficult. It was just to be able to repeat some events in the examination. He told Elsa that he was not good at learning things by heart. He liked music as it gave him comfort. He also liked जियोलॉजी। तो बोलते उसका जो कज़न आते हैं वो बोलते तो पास होना तो बहुत इजी है, राइट। तो ये चीज़ें उसको समझाता है कि प्लीज़ पास हो जा, अदरवाइज चीज़ें ठीक नहीं होगी। ओके, now children, what happened, Albert did not like this to remain in the school। तो एल्बर्ट को स्कूल जाना ही नहीं पसंद था। तो वो यूरी जो उसका फ्रेंड था वो 6 महीने बाद मिला था, एंड ही हैड एन आइडिया। अब एल्बर्ट को एक आइडिया मिलता है कि वो क्या एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाए दैट ही सफ़र, और वो उसमें ये लिखा है कि ही सफ़र्ड फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। इन दिस वे ही कुड गेट रिड ऑफ द स्कूल। तो इस वजह से वो स्कूल से भाग जाता है या गेट रिड ऑफ इट। ही आस्क्ड यूरी इफ़ ही हैड अ डॉक्टर फ्रेंड। तो पूछता है कि यूरी को पूछता है कि तेरे पास कोई जानकार है जो कि डॉक्टर है। यूरी टोल्ड हिम दैट ही हैड वन, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। ठीक है, तो हाउएवर यूरी टोल्ड हिम नॉट टू डिसीव हिम, ही मस्ट बी फ्रैंक विद हिम। ठीक है, तो यूरी टोल्ड हिम नॉट टू डिसीव हिम, उसको धोखा मत देना, he must be frank with him. When Albert visited Dr. Ernest Whale, he had really come close to the nervous breakdown. Dr. Ernest issued him a certificate. His fees was that he should serve Yuri with a meal. तो उसका बस फीस ये था कि यूरी को कुछ खाने के लिए दी जाए। Albert took Dr. Ernest about his future plans. He would go to Milan. He hoped to get admission in some Italian college or institute. Yuri told him to get a reference in writing from mathematics teacher before going to the head teacher. Mr. Koch, the mathematics teacher, was a different man. He understood Albert well. He gave a glowing testimony to him. He wrote that Albert knew so much that it was difficult to teach him anymore. So it was fit to enter the college. Okay, children? अब हमने इतना पढ़ लिया है, तो let us start with the chapter in a very detailed manner. Okay, children? Now we have come to the explanation of the chapter. Albert Einstein at School by Robert Pringley. Albert Einstein 1879 to 1955 is regarded as greatest physicist since Newton. ठीक है, in the following extract from the young Einstein, the well-known biographer जो दूसरों के बारे में लिखता है, Patrick Pringle, described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. तो इससे हमें पता चलता है कि वो जर्मन स्कूल में था, एंड एक्सपल्शन मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इन वॉट ईयर आइंस्टाइन सेड द हिस्ट्री टीचर। अब हिस्ट्री टीचर ये क्लास का सीन है, राइट। अब हिस्ट्री टीचर पूछती है, इन वॉट ईयर आइंस्टाइन सेड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू। तो पूछती कौन से ईयर में आइंस्टाइन, ठीक है, पर्शियंस ने फ्रेंच को डिफीट किया था, राइट। The Persians were Germans, French were people from France. So the battlefield where Persians and France fought was known as Waterloo. ठीक है, समझ में आया। तो वो ये क्वेश्चन पूछता है, कौन पूछता है, इसका हिस्ट्री टीचर। आई डोंट नो। अब वो बोलता है, आइंस्टाइन रिप्लाइड कि ही डिड नॉट नो अबाउट इट, कि आई डू नॉट नो। ठीक है, वाई डोंट यू नो, you have been told it enough, often enough। तो वो बोलता है, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट रिमेंबर अबाउट इट। तो उसने बोला, ही हैड बीन टोल्ड मैनी टाइम्स अबाउट इट। बोलते कि मैंने तुम्हें ये बहुत बार ही समझाया है, तो तुम्हें क्यों नहीं पता है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। आइंस्टाइन बहुत प्यार से बोलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, सेड मिस्टर ब्राउन। तो उसने बोला है कि तुमने कभी याद करने की कोशिश करी है। किसने बोला, ब्राउन ने। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि कभी तुमने याद करने की कोशिश करी है। तो द टीचर आस्क्ड हिम टू इफ ही ट्राइड टू मेमोराइज इट। ठीक है, नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टली। तो वो बहुत आराम से बोलते हैं। सो
आइंस्टाइन रिप्लाइड इन नेगेटिव, मतलब मैंने याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही है. देन वाई नॉट, अब वो पूछता है वाई नॉट. नाउ आइंस्टाइन रिप्लाइड ऑनेस्टली विदाउट थिंकिंग व्हाट वुड हैपन टू हिम, है ना. यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है. एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिम विद अनयूजुअल थिंकिंग. अनयूजुअल थिंकिंग मतलब मतलब ये कि आगे का सोच के ही उसने रिप्लाई भी नहीं करा. वाई नॉट, उसने बोला क्यों नहीं लर्न करा. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. तो अब मिस्टर आइंस्टाइन बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मेरे अनुसार, ठीक है, ये जो लर्न करते हैं ना डेट्स, इट इज़ नॉट यूजफुल टू रिमेंबर दीज डेट्स, ठीक है, कि कोई यूज़ ही नहीं होता है. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. और हमेशा अगर हमें पता करना है कि कौन से साल में था तो हम क्या करते हैं, उसको बुक में देख लेते हैं, ठीक है. तो एनी वन कैन फाइंड दीज थिंग्स इन बुक, ठीक है. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. तो स्पीचलेस मतलब ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग. वो चुप हो गया कि क्या बोल रहा है, राइट. तो वो क्या बोलता है, वो स्पीचलेस हो जाता है फॉर अ मोमेंट, फॉर फ्यू मोमेंट्स की कि बोल क्या रहा है, राइट. देन यू अमेज मी आइंस्टाइन. अमेज मतलब सरप्राइज मी. तो थोड़ी देर बाद, स्पीचलेस होने के बाद, आइंस्टाइन, द टीचर ऑफ आइंस्टाइन, हिस्ट्री टीचर ऑफ आइंस्टाइन स्पोक एंड सेड आइंस्टाइन इफ ही थॉट दैट वन कुड फाइंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स इन द बुक. तो फिर ही सेड कि तुम मुझे हमेशा अमेज करते, सरप्राइज करते. डोंट यू रियलाइज दैट नो वन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक. तो उसने बोला डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक. तो वो बोलता है कि तुझे ये रियलाइज नहीं होता है, बहुत चीज़ें तो हम बुक में ही देखते हैं, ठीक है, सारे फैक्चुअल्स होते हैं, हम क्या देखते हैं, वो बुक्स में ही तो देखते हैं, राइट. तो आइंस्टाइन थॉट दैट वन कुड फाइंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स इन द बुक, ठीक है. That applies to all the facts you learn at school. So don't you think it is true for everything that you are learning at school? तो वो बोल रहे जो भी तुम्हें लगता है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो स्कूल में वो सारी की सारी बुक्स में है. तो फिर आइंस्टाइन बोलता है यस सर. तो आइंस्टाइन क्या बोल रहे हैं अब, राइट. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स मतलब मे आई अज्यूम दैट यू डू नॉट थिंक यूजफुल टू रिमेंबर फैक्ट्स, ठीक है. तो बोलता है कि मुझे अब ऐसे लग रहा है कि जो तू ये फैक्ट्स पढ़ रहा है इसका कोई यूज़ नहीं है, तुझे ऐसे लगता है. फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. और अब क्या एल्बर्ट क्या बोलता है कि सर मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है, ठीक है, आई डोंट, ठीक है, कि ये फैक्ट्स लर्न करने का कोई पॉइंट नहीं है. एल्बर्ट रिप्लाइड ही रियली थॉट सो, ठीक है. फिर देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो फिर टीचर पूछता है, द टीचर आस्क्ड इफ आइंस्टाइन बिलीव्ड इन टेकिंग एजुकेशन. पढ़ना लिखना ज़रूरी है, आइंस्टाइन से पूछता है, ठीक है. ओह यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. उसने बोला यस सर, ही बिलीव्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन तो लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट ही डिड नॉट वॉन्टेड टू मेमोराइज द फैक्ट्स. अब वो क्या करता है, ही डिड नॉट वॉन्टेड कि लर्निंग, देयर शुड बी लर्निंग विद द फैक्ट्स. ओके चिल्ड्रन, ओके. Now in that case, said the history teacher with heavy sarcasm. Sarcasm मतलब satire, उसको टॉन्ट मारते हुए. Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो वो ना sarcastically टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि ऐसे लगता है. With a great satire, teacher requested Albert to kindly explain the theory of education in the class. ठीक है, तो बोलता है कि ऐसे करते हैं कि तू अब क्या कर, एजुकेशन की थ्योरी बता, ठीक है, द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. एल्बर्ट फ्लश्ड. फ्लश्ड मतलब फेल्ट शाय, क्योंकि शर्म तो आती है क्योंकि कोई उसको बोल रहा है कि ऐसे बताओ, टीचर बताओ. तो फ्लश्ड मीन्स ही फेल्ट शाय, ठीक है चिल्ड्रन. नाउ आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स
that matter, but ideas, he said. अब वो बहुत प्यार से बोलता है. आइंस्टाइन रिप्लाइड कि मुझे ऐसे लगता है कि फैक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आइडिया. I don't see point in learning the dates of the battles or even which of the armies killed more men. तो अब वो बोलता है ही थॉट दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द डेट ऑफ द बैटल. वो बोलता है मुझे तो इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये बैटल जो डेट के बैटल है वो याद करना चाहिए. और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और ये भी कि कौन सी आर्मी मैन ने दूसरी आर्मी के कितने सोल्जर्स मारे. ठीक है, राइट. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. और वो बोलता है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड ये रहता कि आई वॉन्टेड टू लर्न वाई दीज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच, वो क्यों मारना चाह रहे थे एक दूसरे को. वाई डिड दे वॉन्टेड टू किल ईच अदर. ही वॉन्टेड टू नो द रीज़न. ठीक है, अब क्या होता है, मिस्टर ब्राउन क्या बोलते हैं, दैट्स इनफ. मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूल. अब उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये स्टूडेंट ऐसे बोले, उससे बोले दैट्स इनफ, बस बहुत हो गया. वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू. अब वो बोलता है वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू. कोल्ड मीन्स विदाउट एनी इमोशन. यहाँ पर जो कोल्ड लिखा हुआ है इट मीन्स विदाउट एनी इमोशंस, राइट, विदाउट एनी इमोशंस, राइट. जो यहाँ पर कोल्ड रहता है, कोल्ड लिखा हुआ है. वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन. वो ना मिस्टर ब्राउन तो गुस्सा हो जाते हैं, तो बोलते हैं चुप हो जाओ. ठीक है, और उसके जो आंखें हैं वो इमोशंस, वो विदाउट इमोशंस और क्रूल से. ठीक है, बहुत गुस्से में. ही सेड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट एनी लेक्चर फ्रॉम आइंस्टाइन. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे. अब उसको डिटेंशन देने वाले, डिटेंशन मतलब पनिशमेंट, और उसको बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, यू विल स्टे इन दिस स्कूल फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस. ठीक है, तुम यहाँ रुकोगे किस चीज़ के लिए, फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा पीरियड टुडे. ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड. बट वो बोलता है, फिर मिस्टर ब्राउन क्या बोलते हैं कि बट द टीचर थॉट दैट द एक्स्ट्रा क्लास विल नॉट हेल्प आइंस्टाइन, कि ये क्या है जो एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हें हेल्प नहीं करेगी क्योंकि तुम इतने ज़्यादा मजाक बना रहे हो. इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर. यू आर अ डिसग्रेस. आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम. ठीक है, अब उसकी मजाक बना रहे, वो बोल रहे हैं द टीचर सेड दैट इट वुड नॉट हेल्प द स्कूल ऑल्सो. और ये करके स्कूल का भी कोई भला नहीं हो रहा है. यू आर अ डिसग्रेस. डिसग्रेस मीन्स इंसल्ट, सॉरी, यू आर एन इंसल्ट, डिसऑनर. ठीक है, यू आर एन इंसल्ट एंड आई डू नॉट नो वाई यू कंटिन्यू. तो यू आर एन इंसल्ट टू द स्कूल. आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू कीप कमिंग टू स्कूल. तो बोलते हैं तुम आते क्यों हो फिर स्कूल में. ठीक है, क्यों, तुम क्या हो, एक डिसग्रेस हो, डिसऑनर हो. ठीक है, और क्या स्टिग्मा, इंसल्टिंग हो तुम स्कूल के लिए, तो तुम आते क्यों है. इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. अब एल्बर्ट फिर से रिप्लाई करता है दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू कम टू स्कूल. वो खुद बोलता है कि सर मुझे ना स्कूल आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय. अनग्रेटफुल इज हियर. अनग्रेटफुल का मतलब अनथैंकफुल, अनथैंकफुल या थैंकलेस जिसे बोलते हैं, कि यू आर अनथैंकफुल बॉय एंड ought to be ashamed of yourself. ought to be मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ought to be मतलब must be. here is must be. अब वो बोलते कि तुम ना बहुत थैंकलेस बॉय है, और you must be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. हम जो बोलते हैं ना, the teacher said that Einstein was thankless boy, he should be ashamed of himself. ठीक है, राइट, ही शुड बी अशेम्ड. आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे. तो वो बोलती कि मैं तुझे ये सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टेल योर फादर टू विड्रॉ यू फ्रॉम द स्कूल, टू मेक यू लीव दिस स्कूल. ठीक है, ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट. Albert felt miserable, very unhappy, very dejected. ठीक है, miserable कहाँ पर है चिल्ड्रन, ये रहा. He felt very unhappy कि किसी ने उसको ये बोला, disgrace बोला.
when he left school that afternoon. So that afternoon when Albert left school, he was feeling very unhappy. Not that it had been a bad day, not that कि उसको इतनी डांट पड़ी पड़ी थी, ठीक है. Most days were bad now anyway. तो वो बोलता है his unhappiness was not because the day was bad for him. ठीक है, most of the days in the school were bad for him. तो हर दिन उसके साथ ऐसा कुछ होता था, हो जाता था कि it was a bad for him anyway. But because he had to go back to the hateful place the next morning. ठीक है, but छुट्टी होते हुए वो ये सोचता कहता कि नेक्स्ट दिन मुझे इसी स्कूल में वापस आना पड़ेगा. ठीक है, ही वॉज फीलिंग सैड बिकॉज द नेक्स्ट डे ही विल हैव टू अगेन गो टू द अनप्लेजेंट प्लेस. ठीक है, अनप्लेजेंट समथिंग विच जनरेट्स हेट, विच इज़ हेटफुल. ठीक है, उसको वो बोलता कि मुझे बस दुख इस बात का है कि मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ेगा. ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग. दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द स्कूल. देन he only wished his father would take him away. अब वो उसकी एक ही इच्छा रहती, क्या इच्छा रहती कि उसके पापा उसको लेके जाएं. But there was no point even asking. अब वो बोलता है but it was useless to make a request. ठीक है, अब क्यों useless था? Sorry children. He knew what the answer would be. और उसको पहले से पता था उसका फादर क्या बोलने वाले. Right? He would say something. Right? Then he would have to stay until he had taken his diploma. वो हमेशा यही बोलता है कि तुम यहाँ तक तुम्हें स्कूल तभी छोड़ना पड़ेगा जब तुम पूरा एक डिप्लोमा कर दो. तो his father would tell him to continue going to school till he completes his diploma, कि इसको complete करना पड़ेगा. Right? Next. Now going back to his lodging. Lodging मतलब place to stay, उसका घर. ठीक है, he did not cheer him up. He did not cheer him up. That means returning to his house from school did not make him happy, did not cheer his mood. Okay, what had happened? His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्योंकि जो एल्बर्ट के फादर थे वो ही वॉज नॉट इन मेकिंग गुड मनी, तो उसको एक स्मॉल पुअरेस्ट क्वार्टर था मुनीच में. राइट, इट्स अ प्लेस इन देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा गरीब का जो क्वार्टर्स था वो वहाँ पर था. राइट राइट चिल्ड्रन, तो ही वॉज इन द पुअर क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक. राइट, इट्स नॉट मुनीच, इट्स म्यूनिक. ओके, दिस वर्ड, वेट, yeah, this is Munich. What is it? It's a small city in Germany. What is the correct pronunciation? Munich. Right? He did not mind the bad food or lack of comfort or even the dirt and squirrel. Right? So he's saying he did not mind what? The bad food, the lack of comfort, or even the dirt and squirrel. Okay, now what he says that he did not mind the bad food or lack of comfort or even the dirt or squalor is garbage. ठीक है, वहाँ पर जो, but he hated the atmosphere of the slum violence. और but वहाँ पर का जो atmosphere है वो उसको सबसे ज़्यादा खराब होता था. his landlady किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? जिनका घर रहता है. beat her children regularly. Every Saturday her husband came drunk and beat her. तो क्या करता था, जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को मारती थी, और जो उसका पति था हर समय क्या करते, पी कर आता था और उसको भी मारता था. राइट, तो ये अच्छा नहीं लगा था. ठीक है, but at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. तो यूरी उसको दिलासा देखता रहता है, बोलते कम से कम तेरे पास तेरा खुद का कमरा तो है. which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor, said Albert. तो फिर यूरी met Albert for a short period of time in the evening. Yuri told Albert that he should be happy that at least he has a room of his own. तो बोलते तुझे तो खुश होना चाहिए बेवकूफ, तेरे पास तो खुद का क्या है, रूम है.
Albert replied that Yuri should be happy that he was living among civilized people, though they were poor. और एल्बर्ट बोलता है कि कम तुम्हें खुश रहना चाहिए because you live in a very civilized area. They are not civilized, Yuri replied. Do you not hear that one of them was killed last week in a duel? अब वो क्या बोलते हैं? यूरी सेड दैट दोज पीपल्स आर नॉट सिविलाइज्ड. अब वो बोलते हैं, यूरी बोलते हैं नहीं नहीं ये सिविलाइजेशन है, कोई सिविलाइज्ड होते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड दैट लास्ट वीक इन अ फाइट बिटवीन टू पीपल वन पर्सन वॉज किल्ड. तो वो बोलता है कि तूने सुना होगा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, वन ऑफ द पीपल वर किल्ड. ठीक है, ड्यूल मीन्स फाइट बिटवीन टू पीपल, राइट. Albert, then what happened? ठीक है, nothing of course. He's even proud of it. He's only worried if that the authority would have told him not to fight any more duels. तो उसने क्या बोला है कि Albert said that what has happened to the person. ठीक है, तो बोलता है कि उसको सिर्फ यही चिंता है कि वो बहुत खुश है, वो बहुत प्राउड है किसी को मार के. बस उसको दुख ये कि कहीं अथॉरिटीज़ ने, ठीक है, उसको रोका होता है इन फाइट्स के लिए. He is upset about this because he has a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तो वो और उसको सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि क्या है, उसका एक स्कार है उसके फेस में और पूरे ज़िंदगी भर वो क्या करेगा, इस स्कार को रखेगा. फिर exclaimed Albert, and these are the students. अब वो पूछ रहा है ये क्या स्टूडेंट्स है. Well, you'll be a student one day, said Yuri. और फिर यूरी बोलता है नहीं नहीं तुम भी एक स्टूडेंट बनोगे एक दिन. I doubt it, said Albert glumly. Glumly means unhappily. बल्कि मैं डाउट करता हूँ कि यार मैं कभी स्टूडेंट बन भी पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma. अब वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं ये स्कूल भी पास कर पाऊँगा, मुझे डिप्लोमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Thank you, student. Now let us see what happens in the next part. Please like, share and comment.